Hi guys, a very warm welcome to all of you in our Guru Mantra Academy, and I'm your educator Saranya, and this is our molecular biology lecture. We're going to continue with it. Okay, so yes, we have seen so far DNA replication and some important basics of molecular biology, and today we are going to see about transcription translation processes. So be ready guys, have your notebook with you. One thing I wanted to say is please make short notes. That is going to help you. If you're going to simply sit and just watch the lecture, eventually you'll fall asleep. It is, I mean, no matter how much the lecturer makes the lecture very interesting, it's our human mentality. Our attention span maybe from 20 minutes to 30 minutes. So what I'm telling you is kindly have a notebook and pen, note down some important points. If you do that, that will be of great help to you. Okay, so let's start. I want your full attention. Okay, give me full of your attention and we'll start the lecture now. Okay, so today we are going to talk about a very important process, transcription. Okay, so what is transcription? So transcription is the process of DNA encoding its material to mRNA. So the genetic information in the DNA is transcribed, which means encoded in the form of mRNA, messenger RNA. So this is the process of transcription. So it is one of the first processes in the gene expression. Gene की expression means protein production. Protein production की first. This is protein and this is production. Just written in a short form. Okay, don't confuse it. Okay. So gene एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन, उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन. सो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है उसे प्रोटीन तक ले जाने का एक प्रोसेस, अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. So only one strand of DNA is copied during the process of transcription, known as the template strand, and the RNA that is formed is called as mRNA. Okay, तो इसमें क्या होता है? DNA, okay, this is the DNA. इसमें से information encode होके आती है mRNA में. mRNA में. So only one of its strand is taken as a template. दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को लेके लिया जाएगा जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है इसे हम एमआरएनए करके कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन एन्कोडेड होती है प्रोटीन को बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. अगर कोई रेसिपी बनानी है, कुछ खाना पकाना है, then you should know what are the ingredients necessary for making a dish. So for this transcription also we'll see what are the ingredients necessary. So the first ingredient we are going to talk about is RNA polymerase. Okay, RNA polymerase is a very important enzyme that is involved in transcription. तो ये RNA polymerase क्या करता है? It uses single strand DNA. Single strand DNA को use करता है to synthesize a complementary RNA strand. So usually DNA will be present in the form of double strand. Now this will get converted into single strand, मतलब denature होगा. Okay, only single strand will be taken, and this single strand is called as a template. Okay, this is called as a template, और इसको template की तरह use करके, for example it has the bases A, T, T, G, C, A, C, C, T, T, G, A, T, C, T. मान लो ये है यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स. अभी इसको टेम्पलेट मानकर आपका आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज का मतलब है
ये एक नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा, आरएनए की सिंथेसिस के लिए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज. सो इट विल टेक डीएनए एज अ टेम्पलेट एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. ओके, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब इसकी ऑपोजिट बेसिस यहाँ प्रेजेंट होगी. दैट इज कॉल्ड एज आरएनए, स्पेशली एमआरएनए. सो क्या होगा, ए मतलब यहाँ टी, एमआरएनए में टी नहीं होता है, इंस्टेड यू होता है. यू ए सी जी, देन ए, देन यू यू यू, जी जी, ए ए, जी के बजाय सी, ए के बजाय टी, टी की जगह यू, देन ए, देन जी, देन ए. So this is the complementary strand. RNA polymerase क्या करता है, one of the DNA strand को टेम्पलेट बना के ओके RNA की सिंथेसिस करने में यूज करता है. ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ RNA polymerase. That is why it is called as DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent मतलब DNA को टेम्पलेट मानूंगा और RNA को बनाऊंगा. ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, राइट? ओके, सो द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन. ओके, मतलब ये है एक डीएनए, दिस इज योर डीएनए, इट हैज अ प्रमोटर रीजन. सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन and catalyzes the polymerization in the 5' to 3' direction on the template strand. मतलब new mRNA will be synthesized. Okay, new mRNA will be synthesized. Once it reaches the terminator sequence, अगर एक promoter is a starting sequence. promoter sequence अगर starting है तो ending के लिए भी एक sequence की जरूरत है. So that will be your terminator sequence. जब terminator sequence के पास आता है, then the process will get stopped. And the newly synthesized RNA strand will be released. It will be released. Okay. Okay. 1 second, guys. Okay. So the transcription unit is a stretch of DNA. Transcription unit क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा डीएनए है मगर मुझे सिर्फ ये वाला रीजन ही एमआरएनए में कन्वर्ट करना है. ओके, तो दिस स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड टू एमआरएनए. सिर्फ इस स्ट्रेच का एमआरएनए बनता है. सो मतलब क्या है, सिर्फ इस स्ट्रेच का कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ एक प्रोमोटर रीजन होगा और यहाँ एक टर्मिनेटर रीजन होगा. आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा, कहाँ तक, जब तक टर्मिनेटर सीक्वेंस आना जाए. यहाँ ये सीक्वेंसेस नहीं काम आएंगे क्योंकि यहाँ कोई प्रमोटर नहीं है. सिर्फ प्रमोटर रीजन से ही आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होता है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज सेइंग. Suppose if gene encodes protein, that mRNA is produced by transcription. A protein encoded by the DNA transcription unit may comprise a coding region. Compared to DNA replication, transcription has a low copying fidelity. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि DNA replication से कंपेयर करते समय ट्रांसक्रिप्शन में फिडिलिटी कम होता है. ओके, फिडिलिटी मीन्स देयर इज, फिडिलिटी का मतलब है देयर इज नो मिस्टेक, बट यहाँ मिस्टेक होने का चांसेस कभी कभी होता है, बट दैट इज ओके, दैट इज ओके. एंड ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि डीएनए में से जो भी रीजन्स है जो कि प्रोटीन बनाती है विच कम्स अंडर द आरएनए, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आरएनए. ओके, दिस इज योर आरएनए रीजन. इसमें कुछ सीक्वेंसेस कहते हैं हम एक्सॉन, कुछ सीक्वेंसेस कहते हैं हम इंट्रॉन. अगेन एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, एक्सॉन. सो इसमें से द रीजन विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बन सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉनिक रीजन. एक्सॉनिक रीजन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यूज करता है फ्रॉम द आरएनए
and it will make protein. इंट्रॉनिक रीजन प्रोटीन्स नहीं मेक कर सकते हैं, दे आर सम लाइक एक्स्ट्रा जंक डीएनए. तो व्हेन एमआरएनए इज मेड लाइक दिस, सो यहाँ हम देख सकते हैं अनवांटेड रीजन्स जो कि प्रोटीन नहीं बना सकते वो भी हैं. सो देयर विल बी ए प्रोसेस कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में से इस इंट्रॉनिक रीजन को रिमूव करके ये जो एक्सोनिक रीजन है ना 1 2 3 4, ये 4 एक्सोनिक रीजन को एक साथ स्टिच कर दिया जाता है. इंट्रॉन यहां से अलग से निकल के चला जाता है जो कि जरूरी नहीं है, लाइक दिस. ओके ओके. सो स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के भी स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेजेस इनिशिएशन, शुरुआत. एलोंगेशन, जिसमें स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए बनता है. टर्मिनेशन, जब टर्मिनेटर सीक्वेंस आता है वहां खत्म हो जाता है. सो इनिशिएशन, इसमें क्या होता है, RNA polymerase will attach to the DNA molecule at the promoter region. याद रख लीजिएगा, at the promoter region and moves along the DNA strand. Okay, so ऐसे बैठ, ये जो मैं बीन शेप्ड का बना रही हूँ ना, that is your RNA polymerase. ये promoter region में बैठ जाएगा and it will go in this direction along the stretch of DNA and it will recognize the promoter. ओके ऐसे प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेगा. जब उसने प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर लिया, दैट मीन्स द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट हियर. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स. उस तब तक जब तक वो प्रोमोटर के पास नहीं आ जाता वो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू नहीं करता. व्हेन इट बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्ट आई मीन द प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स. द डबल हेलिक्स देन अनवाइंड्स. अभी तक तो डबल हेलिक्स था, देन इट विल अनवाइंड. ओके, मान लो ऐसा है, ऐसा डबल हेलिक्स था बट नाउ इट विल अनवाइंड. ओके, ऐसे अनवाइंड हो जाएगा. ओके, 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे. वन ऑफ द स्ट्रैंड विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA स्ट्रैंड विल बी मेड. ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. एलोंगेशन में क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, AUGC. ओके, दिस इज द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ये जाके टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अटैच हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल में स्टेप्स के साथ बताया था. फॉर एग्जाम्पल ATTGGCTA. अगर दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड एंड इट गोज ऑन, आपका एमआरएनए स्ट्रैंड ऐसे बनता है. एमआरएनए स्ट्रैंड विल बी UAACCGAUU. ऐसे बनता है. ओके, ऐसे बनता है एमआरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन. जब आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करता चलता आता है, व्हेन इट फाइंड्स द टर्मिनेटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस या फिर स्टॉप कोडॉन करके हम उसे कहते हैं. ओके, जब वो आ जाता है देन द टर्मिनेशन विल स्टॉप, मतलब द प्रोसेस विल स्टॉप, टर्मिनेट हो जाएगा. एंड द आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए टेम्पलेट को अलग भेज देगा और एमआरएनए को वहां से रिलीज कर देगा. एंड दिस विल ऑल्सो डिसोसिएट. दिस मशीनरी विल डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज आरएनए प्रोसेसिंग. एमआरएनए बन गया. ओके, एमआरएनए हैज बीन मेड. नेक्स्ट स्टेप इज आरएनए प्रोसेसिंग. मैंने आपको बताया था जो कि एमआरएनए बनता है उसमें एक्सोनिक रीजन एंड इंट्रॉनिक रीजन होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्री एमआरएनए. अनवांटेड रीजन होते हैं जिसमें से प्रोटीन बनने की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देती हूँ. दिस इज वन ऑफ द एमआरएनए सीक्वेंस. इट हैज एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3. अगर इसमें से प्रोटीन बनना है देन इट विल बी लाइक दिस इज द कोडिंग रीजन. ई इज द कोडिंग रीजन जिसमें से प्रोटीन बनता है. आई इज अ नॉन कोडिंग रीजन, उसमें से प्रोटीन नहीं बनता, ट्रांसलेशन नहीं हो पाता. अगर इफ दिस इज योर रीजन देन प्रोटीन्स विल बी फॉर्म लाइक दिस. यहाँ प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा, लाइक दिस नहीं फॉर्म होगा, लाइक दिस. देन इट विल मेक शॉर्ट स्ट्रैंड्स और ट्रंकेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन जो कि एक्टिव नहीं होता, कोई काम नहीं करता. इट विल गो कंप्लीटली वेस्ट. So what we have to do is we have to make the pre-mRNA into a mature mRNA.
ओके, प्री mRNA इनटू अ मैच्योर mRNA बनने के लिए कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन. कैपिंग इज 5' एंड में कैप लगाना है, एक कैप. ओके, वन कैप विल बी मेड. पॉलीएडिनाइलेशन 3' एंड में पॉली ए टेल विल बी एडेड. स्प्लाइसिंग, एक्सॉन्स को रख के इंट्रॉन रिमूवल. अभी वी विल सी इन डिटेल what does this all process mean. So capping में क्या होता है, a methylated guanine cap, guanine which is methylated is added to protect the mRNA. For example, this is your mRNA, this is 5' region, this is 3' region. One guanine, methylated guanine will be added to the 5' end, जो कि mRNA को protect करता है. So एडिशन ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानाइन, ये 5' एंड में होता है. ये mRNA की डिग्रेडेशन है. ओके, mRNA की डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट इज पॉली ए टेल. पॉली ए टेल ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ mRNA ओनली, बट वो यहाँ 3' एंड में होता है. बहुत सारे पॉली ए टेल्स, मतलब सम 20 सीक्वेंस तक ये जाता है. ओके, सो दिस इज द पॉली ए टेल, लाइक अ it is added to the 3' end of the mRNA, जो कि एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, बीच में आके क्लीव कर देते हैं mRNA को, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है. ओके, देयर इज एन एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज. ओके, पॉली ए पॉलीमरेज जो कि ये एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड में ऐड करने के लिए यूज होता है. So this is the step for the protection of mRNA, ताकि वो डिग्रेड ना हो पाए by several enzymes. Next step is slicing. बीच में मैंने जो भी आपको इंट्रॉनिक रीजन करके बताया था उसको निकालना है. So a spliceosome will be formed, which is a machinery that will remove these regions. इस regions को remove करके जो भी यहाँ extra regions है ना, apart from I, उसको स्टिच कर देता है, एक साथ लिगेट कर देता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग. ओके, सो कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है. डीएनए है. ओके, डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. दिस इज हाउ एमआरएनए इज मेड. ओके, दिस इज हाउ एमआरएनए इज मेड. क्या करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर दूसरा स्ट्रैंड एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाता है. बट प्री mRNA इज नॉट अ वेरी स्टेबल. ओके, तो उसमें क्या करते हैं, 5' एंड में मिथाइलेटेड ग्वानाइन और 3' एंड में पॉली ए टेल ऐड किया जाता है. एंड इसमें जो भी इंट्रॉनिक रीजन्स है उसको रिमूव करके अब मैच्योर mRNA बनाया जाता है, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस अंडरगो करके आपको पॉलीपेप्टाइड दे सकता है, प्रोटीन बना सकता है. ओके, ओके, अभी हम हर एक प्रोसेस इन डिटेल में देखेंगे. मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया, आपको लगा होगा कि अच्छा ओके खत्म हो गया. ऐसा नहीं है, विल सी एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी. सो इनिशिएशन में मैंने आपको क्या बताया था, आरएनए पॉलीमरेज विल स्कैन द डीएनए और जहां भी प्रमोटर है वहां जाके बाइंड हो जाएगा और वहां से डीएनए की अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी. सो दिस बिग ऑरेंज कलर एंजाइम इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि डीएनए को स्कैन करेगा और इट विल फाइंड द प्रमोटर सीक्वेंस हियर. कैन यू सी हियर प्रमोटर सीक्वेंस. प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाएगा और डीएनए को अनवाइंड कर देगा. जब डीएनए अनवाइंड हो जाता है देन यू विल गेट सिंगल स्ट्रैंड. वन स्ट्रैंड इज दिस, द अदर स्ट्रैंड इज दिस. ओके, 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे. एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर इट विल synthesize the mRNA. कब तक, until it reaches the terminator sequence. समझ में आ गया. दिस इज इनिशिएशन. elongation में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट फ्रॉम द 3' टू 5' डायरेक्शन. टेम्पलेट, एक चीज आपको याद रखना है, द फॉर्मेशन जो कि नया mRNA फॉर्म हो रहा है दैट विल बी फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन. देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, 3' टू 5' डायरेक्शन. ऑलवेज रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर चीज 5' टू 3' डायरेक्शन में ही होती है.
बट उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट होता है दैट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट MCQs में आपको आ जाता है. Okay, so RNA polymerase will move along the template from the 3' to 5' direction to produce the RNA that is from 5' to 3' direction. Can you see here? Can you see here? RNA polymerase नए RNA को ऐड करता जा रहा है. This is the ribonucleotides AUCG. It will add the RNA. I mean these ribonucleotides one by one based on the template. Template को read करेगा and it will add one by one in the direction of transcription. Okay, so when RNA polymerase reaches the termination site, जब वो termination site में आ जाता है, the RNA transcript is set free. मतलब RNA DNA से बाहर निकल जाएगा, DNA again will wind, ठीक है, डबल हेलिक्स में wind हो जाएगा. The RNA has the same base sequences as the DNA. ठीक है, RNA में same bases होते हैं DNA में, except T की जगह U होता है. ओके, टी की जगह यू होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, ओके, कैन यू सी हियर RNA polymerase, RNA polymerase has several subunits. Okay, one of the important subunit is the sigma factor. Okay, it will have alpha, beta, gamma, omega subunits. इसके साथ ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इन एन इनएक्टिव प्रोटीन में. अगर इसके साथ ओमेगा बाइंड हो जाता है देन इट विल बिकम एन एक्टिव प्रोटीन. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. RNA polymerase along with the sigma factor will be an active protein, active polymerase that can actually scan the DNA, find the promoter region, bind to it and go on. जब वो bind कर लेता है promoter region से, then what will happen? Then ये जो sigma sequence है ये बाहर निकल जाएगा and it will go till the terminator. Terminator के पास जब जाता है एक row sequence होता है. So a row, this is a protein that will also come and bind to the RNA polymerase. When row binds to RNA pol, it will become inactive. Okay, and this happens at the terminator sequence. एक चीज याद रख लीजिएगा, RNA polymerase के साथ सिग्मा बाइंड करेगा तो it will be active, it will help in the process of transcription. अगर and yeah, when the transcription starts, ये जो सिग्मा सब यूनिट है ये बाहर निकल जाएगा and it will go, the process will go on. जब RNA polymerase binds to the row factor, then the termination will happen. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. What is the role of sigma? What is the role of row? Okay. Okay, this you have to remember. Okay, RNA polymerase bind हो रहा है terminator region के साथ. There is an unwinding of DNA. Can you see here? Coding strand is there, template strand is there. Based on the template strand in the RNA, the ribonucleotides are added and DNA RNA hybrid region is formed. And this एक चीज आपको मैं बताना भूल गई, ये जो DNA RNA hybrid है, here the excuse me, ये जो DNA RNA hybrid है, यहाँ भी what is the bond in between? Hydrogen bond is there, so it is a good amount of bond. इसको बाहर, I mean this hydrogen bond has to be broken, तभी ये RNA template DNA से बाहर आएगा. And for that an enzyme is used, RNase H. This enzyme ये क्या करेगा? DNA RNA hybrid को तोड़ देगा and your RNA can come out easily. Okay. ओके, अभी तक हमने बहुत चीजें पढ़ी है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है RNA पॉलीमरेज. मैंने आपको बताया था जब RNA पॉलीमरेज के साथ सिग्मा सब यूनिट बाइंड होता है, इट विल बी लाइक अ एक्टिव साइट. एक्टिव, ये एक्टिव बन जाएगा. बट यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में भी RNA पॉलीमरेज हैज सेवरल सब यूनिट्स. वी आर गोइंग टू सी ईच वन बाय वन. इसके पास 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट, then 1 beta subunit, 1 beta dash subunit and 1 sigma subunit. Alpha, 2 alpha subunit, 1 beta subunit, 1 beta dash subunit. This is a apoenzyme. Apoenzyme मतलब inactive form of an enzyme. जब इसके साथ sigma subunit bind होगा, then it will become a holo enzyme, active enzyme. एंड हर एक इस सब यूनिट का अपना एक फंक्शन है. विल सी वन बाय वन.
अल्फा सब यूनिट 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं एंड साइज इज 36.5 किलो डाल्टन. फंक्शन है कि चेन इनिशिएशन एंड इंटरैक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स, दैट इज द फंक्शन. बीटा सब यूनिट इज 151 किलो डाल्टन, ओनली वन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट. ये एलोंगेशन में हेल्प करता है. अल्फा सब यूनिट हेल्प्स इन द इनिशिएशन, बीटा सब यूनिट हेल्प्स इन द elongation, बीटा डैश सब यूनिट हेल्प्स इन द डीएनए बाइंडिंग. ये जो होलो एंजाइम है ना, आरएनए पॉलीमरेज, इट हैज टू बाइंड टू द डीएनए. तो उसके लिए डीएनए बाइंडिंग डोमेन चाहिए, दैट इज योर बीटा डैश सब यूनिट. सिग्मा क्या करता है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसमें हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए पोटेंशियल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ओके, आई जस्ट रिमूव इट. ओके, यू कैन नोट दिस. ओके, आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंडिंग टू द प्रमोटर रीजन. कुछ ऐवे ही थोड़ी होगा प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन के बारे में भी तो लोगों ने रिसर्च किया कि ये प्रमोटर रीजन हर जगह बोल रहे हैं. क्या है ये प्रमोटर रीजन, कैसा होता है ये प्रमोटर रीजन? बेसिकली प्रमोटर रीजन के पास दो चीजें होती हैं. वन इज -35 रीजन एंड टाटा बॉक्स. सो दिस इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स. Okay, this is called as Tata box, which is present at -10 region. ये -10 या -35 ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत हो रहा है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत हो रहा है. देन दिस इज कॉल्ड एज 1, दिस इज नेम्ड एज 1. यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले, दैट इज कॉल्ड एज माइनस. पहले, उससे पहले, दैट इज -10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले यू हैव टाटा बॉक्स. एंड फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट 35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले, दैट इज कॉल्ड एज ये जीसी बॉक्स. ओके, सो -35 रीजन, -10 रीजन के साथ आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है. ओके, फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट 10 regions before is Tata box, and from the transcription site 35 region before, 35 nucleotides before is called as GC box. इसके साथ आपका RNA polymerase बाइंड कर जाता है. एंड प्रोमोटर यही है करके रिकॉग्नाइज करने के लिए जो सिग्मा फैक्टर मैंने आपको बताया था इन द लास्ट स्लाइड, I told you sigma factor recognizes the promoter region. कैसे? It will recognize the promoter region with this sequence, Tata box and GC box को recognize करके बता देगा कि हाँ this is the promoter region. Okay, promoter region -35 में है, -10 में है. That means यहाँ से, for example, if I'm talking about Tata box, it has recognized the Tata box. उसको पता चल जाएगा okay, यहाँ से 10 यूनिट्स के बाद, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना चाहिए. It will recognize. This is how it recognizes. Sigma factor इसी तरह recognize करता है. Sigma factor will go and bind to your Tata box and GC box of the promoter region, and it will say हाँ मैं bind कर चुका हूँ, I have recognized the promoter region, now I'll have to start the transcription. इतना आपको समझ में आ गया, right? Okay, so this is how your transcription initiation शुरू होता है. मैंने आपको एक क्या करूं, मैंने I have said everything to you what is required in a flow which will not make you forget. पहले मैंने आपको पूरा प्रोसेस generally बता दिया. Okay, then I told you about RNA polymerase, इसका फंक्शन कैसा होता है. Then I told you about the subunit of RNA polymerase. Then I told you, I mean जनरल के बाद डिटेल बताया, डिटेल के बाद मैंने सब यूनिट्स बताया RNA पॉल के बारे में. फिर I also told you how the sigma factor binds to the promoter region. इतना आप जान लो, उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं पड़ेगी. ओके, सो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेस है. इट इज नॉट लाइक बोथ आर सेम, देयर आर डिफरेंसेस. So transcription and translation occurs simultaneously in prokaryote.
बट दैट इज नॉट द केस इन यूकैरियोट. यूकैरियोट में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज को ट्रांसलेशन. प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हर चीज साइटोप्लाज्म में ही होता है. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन दैट इज एमआरएनए फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है एंड प्रोटीन फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है. RNAs are released and processed in the cytoplasm. RNAs रिलीज की, RNA जो कि बना है उसको रिलीज किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है साइटोप्लाज्म में. बट RNA रिलीज, प्रोसेसिंग हर चीज न्यूक्लियस में ही होता है इन यूकैरियोट्स. RNA polymerases are a complex of 5 polypeptides. Okay, 5 subunits से बना होता है. Now only we studied alpha, beta, beta dash and सिग्मा. ये है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सब यूनिट्स ज्यादा होते हैं, 10 to 15. ये सब आपको क्वेश्चन मतलब व्हाट आर द सब यूनिट्स करके पूछा नहीं जाता, यूजुअली प्रोकैरियोट से ही पूछते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी डिटेल्ड एंड इन डेप्थ और बहुत डिफिकल्ट होता है. इट्स नॉट फॉर द स्टूडेंट लेवल, इट्स एट द रिसर्चर लेवल. Doesn't require any proteins or other factors for the initiation of the transcription. Initiation of the transcription के लिए कुछ जरूरी नहीं पड़ता, but eukaryotic transcription में initiation factors आते हैं. Okay, so this is the difference between prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. Okay, मैंने आपको यहाँ image में भी बना दिया है. Okay, can you see here this beautiful image? This is your DNA. And what is this? This is your RNA polymerase sigma subunit. आके promoter को recognize किया, then open promoter complex बना, then your mRNA, pre-mRNA is synthesized, processed, everything is done. Eukaryotic transcription में can you see here? Can you see here? This is the chromosome. इसमें intronic exonic regions है. Splicing basically eukaryotes में ही होता है. प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग मशीनरी नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, देन आफ्टर स्प्लाइसिंग योर प्रोटीन्स विल बी मेड. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन ट्रांसक्राइबिंग ह्यूमन प्रोटीन्स इन यूकैरियोट्स, ऐसा हम करते हैं ह्यूमन प्रोटीन्स को यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्राइब करा के रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनता है जो कि थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए बहुत नेसेसरी है, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए. सो ऐसे करते समय वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज दैट अगर इफ वी आर नॉट रिमूविंग द इंट्रॉनिक रीजन फ्रॉम द यूकैरियोट्स एंड डायरेक्टली हम इंट्रॉन एक्सॉन के साथ इफ वी आर डूइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, then the protein will not be produced in the eukaryotic system. प्रोटीन यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं बनेगा क्योंकि इंट्रॉन रिमूवल प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं है, स्प्लाइसिंग मशीनरी नहीं है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके, दीज आर सम ऑफ योर क्वेश्चंस व्हिच आई हैव बॉट फॉर यू. ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कर लीजिएगा. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू इट. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी करा रखा है. जस्ट गो थ्रू इट, अब यू कैन इजीली डू दिस. ओके, आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर लाइक 2 minutes. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करेंगे. 2 minutes ब्रेक यू हैव. ओके, जस्ट आप इस क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं, आप होमवर्क में ले लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? वेरी सिंपल. ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए बना था वहां से प्रोटीन बनता है. एमआरएनए को टेम्पलेट मानकर प्रोटीन बनता है. दैट इज योर ट्रांसलेशन. ओके, सो ये क्या करता है? एमआरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको
ट्रांसलेट करता है इन अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इज प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी समझती है. ओके, so it is the process in which the ribosomes are involved that is present in the cytoplasm. free ribosomes है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो बाउंड राइबोसोम जिसे हम RER कहते हैं ना, वो भी है. दोनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं. ओके, सो दिस इज योर मेमेलियन राइबोसोम, जो कि मेमेलियन राइबोसोम मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम इज बेसिकली 80S सब यूनिट एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S सब यूनिट. ओके, ये तो आपको डेफिनेटली पहले से ही पता होगा. ओके, सो ये जो 80S सब यूनिट है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 60S एंड 40S. दिस इज द सब यूनिट. जब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, 80S doesn't mean that 80S does not mean that 60S plus 40S ये कभी इक्वल नहीं होगा. What it means that is जब हम राइबोसोम को तोड़ के दो सब यूनिट बनाते हैं, ओके, जब दो सब यूनिट दो सब यूनिट बनता है, one is the large सब यूनिट, the other one is the small सब यूनिट. ओके, now what we are doing is इन सब यूनिट्स को हमने तोड़ लिया एंड what we are going to do is we are going to do density gradient centrifugation. डेंसिटी के हिसाब से सेंट्रीफ्यूज करके हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे. सो ये जो S मीन्स स्वेटबर्ग. व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन. ओके, डेंसिटी के हिसाब से, मतलब मान लो ये है एक टेस्ट ट्यूब. ओके, डेंसिटी के हिसाब से कुछ यहाँ सेडिमेंट होता है, कुछ यहाँ सेडिमेंट होता है. यहाँ से इसका नंबरिंग दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके. सो एट व्हाट रीजन, ओके, कहाँ, मतलब यहाँ कहाँ ये जाके सेडिमेंट होता है, उसके बेस्ड अपॉन आपका S बन जाता है. ओके, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन में होगा, 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे. सो जब राइबोसोम को लिया गया ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, और उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, ये पता चला कि लार्जर सब यूनिट इज सेडिमेंटिंग एट दिस रीजन, लार्जर सब यूनिट, एंड स्मॉलर सब यूनिट इज सेडिमेंटिंग एट दिस रीजन. ये जो लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट हुआ दैट इज एट 60 में वो सेडिमेंट हुआ, दैट देन इट बिकम्स 60S. स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंटेड एट 40, देन इट बिकम्स 40S. दैट्स इट. ओके, दैट इज वाई इट इज 60S एंड 40X. जब हम एक पूरा राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम विदाउट एनी डिग्रेडेशन, इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में लेके जा रहे हैं, इट सेडिमेंटेड एट 80S. ओके, इट सेडिमेंटेड एट द रीजन ऑफ 80S. मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ. ये मान लो 20, 40, 60, 80, दिस इज द रीजन. 40 में आपका स्मॉल सब यूनिट सेडिमेंट हुआ ऑफ द राइबोसोम, एंड 60 में लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट हुआ, 80 में होल, मतलब विदाउट एनी डिसरप्शन फुल राइबोसोम सेडिमेंट हुआ. इसके हिसाब से नाम दिया गया है. ओके, इट डज नॉट मीन्स 40 + 60 तो 100 होगा, 80 क्यों आ गया, ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट इसका इन्होंने नाम रखा है. ओके, 60S सब यूनिट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 28S rRNA प्रेजेंट होता है, 5.8S rRNA प्रेजेंट होता है, 5S rRNA है, एंड 49 प्रोटीन्स. दिस इज जस्ट द कॉम्पोजिशन. 40S सब यूनिट में 18S rRNA एंड 33 प्रोटीन्स. ये ना आपको ना MCQ में आ सकता है, इसलिए आई हैव गॉट दिस स्लाइड फॉर यू. MCQ में ये आता है. सो राइबोसोम बेसिकली दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, या तो फ्री राइबोसोम हो सकता है या फिर वो ER के साथ बाउंड हो सकता है, राइट. तो mRNA जब राइबोसोम के साथ बाइंड होता है, कैसा बाइंड होता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. सो सब यूनिट, पहले यू हैव द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट, अलग अलग होता है. ओके, ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, इसके जो लार्जर सब यूनिट होते हैं, एंड द यूकैरियोटिक का 80S होता है, प्रोकैरियोटिक का 70S होता है. इनिशियली द लार्जर सब यूनिट के साथ आपका, मतलब ऐसे मान लो,
लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट के साथ आपका mRNA आके बाइंड हो जाता है। इस असेंबली के बाद आपका लार्ज सब यूनिट आके इसके साथ बाइंड होके फुल कंप्लीट मशीनरी बना देता है। ओके, फर्स्ट mRNA will bind to the smaller subunit, then the larger subunit will come and bind, it will become a complete machinery। अभी ये synthesize करने के लिए रेडी है। ओके, सो राइबोसोम साइट्स फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन। साइट्स होते हैं राइबोसोम में जो कि प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए हेल्पफुल है। 3 बाइंडिंग साइट्स, वन इज ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जहाँ टीआरएनए टीआरएनए चार्ज टीआरएनए मतलब टीआरएनए it will be bound to an amino acid। okay, it will be bound to an amino acid। okay, tRNA के पास there is a amino acid terminal, anticodon anticodon के साथ bind करने का terminal है। so let's say this is the amino acid and this is valine and it has another region, anticodon region, जो कि कोडॉन के साथ आके बाइंड होगा, दैट इज विल कम एंड बाइंड टू द ए साइट। ए साइट में क्या होगा, ए साइट विल हैव योर mRNA विद अ कोडॉन। वैलाइन का जो भी कोडॉन है, फॉर एग्जांपल वैलाइन का जो भी कोडॉन है, लेट मी से GUG। ओके, एक कोडॉन है जो कि वैलाइन के लिए सिंथेसिस, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि दिस इज करेक्ट। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। या फिर मेथियोनाइन रख लीजिए ना, AUG मेथियोनाइन, दिस इज मेथियोनाइन। ओके, नाउ tRNA will bring the amino acid and it will also have the anticodon region। anticodon region क्या करेगा, correctly it will bind to the codon region। ये है codon region, this is the codon region, AUG anticodon will be, what will be anticodon, it will be UAC will be the anticodon। UAC will have the complementarity to AUG in the mRNA, it will come and bind होने के बाद it will leave the methionine in the A site and it will leave, methionine को यहाँ छोड़ के चला जाएगा, छोड़ देगा। ओके, नेक्स्ट इज द पी साइट। पी साइट को पेप्टिडाइल साइट करके कहते हैं। जैसे एक टीआरएनए आया, मेथियोनाइन को छोड़ दिया, सेम वे पी साइट विल बी हियर, ई साइट विल बी हियर। ये जो मेथियोनाइन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ए साइट, नाउ इट इज फ्री ना। तो अगर ए साइट फ्री है तो नेक्स्ट टीआरएनए विल कम एंड गिव इट अ न्यू अमीनो एसिड। ये पढ़ के ऐसे चेंज होता चलता है, पढ़ के चेंज होना, पढ़ के मूव ऑन। पहले वो पढ़ेगा व्हाट इज द कोडॉन एंटीकोडॉन रीजन, अमीनो एसिड को देगा, अमीनो एसिड विल ट्रांसफर फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, देन इट विल गेट रिलीज्ड। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, न्यू टीआरएनए। न्यू टीआरएनए विल कम एंड बाइंड टू द ए साइड, जिसके पास मान लो वैलाइन है या फिर ग्लाइसिन है, वो आके ए साइड में छोड़ेगा, देन इट विल गो ए साइड में जो भी है, देन अगेन इट विल गो टू पी साइड। पी साइड देन व्हाट विल बी देयर, मेथियोनाइन, ग्लाइसिन, अलानिन, ऐसे करके 1 अमीनो एसिड विल बी कमिंग। जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, व्हेन देयर इज अ स्टॉप कोडॉन आ जाता है, देन देयर विल बी टर्मिनेशन। अब स्टॉप कोडॉन विल बी फ्रॉम द टीआरएनए। ओके, व्हेन हियर स्टॉप कोडॉन इज देयर, उसका कोई एंटीकोडॉन नहीं है, विच मीन्स कोई एक नया टीआरएनए अमीनो एसिड को छोड़ने के लिए नहीं आएगा, देन इट मीन्स योर ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। चेन क्या होगा, पी साइड से ई साइड में जाएगा, विच इज कॉल्ड एज एग्जिट साइट। ई साइड में जाएगा, वहां से वो बाहर रिलीज होके चला जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। ओके, दिस इज द बेसिक प्रोसेस। इसको आप रिवीजन साइड की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें बहुत एमसीक्यूज का व्हाट कैन आई से, एमसीक्यूज का पोटेंशियल है, बिकॉज मैंने आई हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट कैन इनहिबिट द प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया था पहले, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, देन इट विल गो एंड लुक फॉर द ए साइट। ए साइट में इट विल गो एंड लुक, ए साइट में इट विल सी वेदर इट हैज द कोडॉन, एंड इफ इट इज देयर, वो अमीनो एसिड को वहां टीआरएनए के पास छोड़ के चला जाएगा। ओके, अमीनो एसिड टीआरएनए सिलेक्शन एंड अकोमोडेशन। देन क्या होगा, ए साइड से पी साइड के पास, ए साइड से पी साइड के पास चला जाएगा,
ओके, ए साइड से पी साइड के पास चला जाएगा, देन what will happen, peptide bond formation हो जाएगा, then again it will go, then again new tRNA will come and bind, it will give new amino acid and it go, ऐसे ऐसा चलता चला जाएगा until it comes to an exit के पास क्या होगा, ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बाहर निकल के आ जाएंगे, and these are the antibiotics that can inhibit the process. Okay, so this is an mRNA initiation, this is the mRNA that will bind to the smaller subunit, then a larger subunit come and bind. So इस process को mRNA binding to the smaller subunit and the larger subunit को inhibit करने के लिए adenine, then adenine is the one of the antibiotic that can cut this process, inhibit this process. Okay, next goes your process of amino acid tRNA, जो कि नया अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है, उसको स्टॉप करने का, इनहिबिट करने का प्रोसेस इज डन बाय द एंटीबायोटिक जेनेटिसिन. ओके, जेनेटिसिन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए इतने सारे एंटीबायोटिक्स है. ओके, एंड mRNA tRNA ट्रांसलोकेशन में को इनहिबिट करने के लिए यू कैन सी दीज आर द एंटीबायोटिक्स, एंड टर्मिनेशन को इनहिबिट करने के लिए ब्लास्टिसिडिन इज यूज्ड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें यू कैन टेक दिस एज अ रिवीजन बॉक्स. एक तो इसमें पूरा प्रोसेस है, प्लस व्हाट आर द इनहिबिटर्स वो भी इसमें है. ओके, सो प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, mRNA binding to the smaller subunit, then larger subunit will come and bind, then your charged tRNA, can you see here, charged tRNA with the amino acid will come here, it will give the amino acid at this side, entry side. Okay, यहाँ के amino acid दे देगा and this will move. Okay, amino acid will move one by one, it will move here, then it will move here, move here, move here, ऐसे move होते होते चला जाएगा. A growing polypeptide will be made and the growing polypeptide will be excited when there is a stop codon. ओके, ग्रेट. तो पहले जब tRNA चार्ज tRNA आता है विद एन अमीनो एसिड, ये कम एंड एंटर द पी साइट. ओके, पी साइट में आएगा, अमीनो एसिड को छोड़ेगा, देन अमीनो एसिड विल गो टू द ए साइट. ओके, अगेन पी साइट विल बी खाली, न्यू tRNA will come with amino acid that will come and sit here, again it will give the amino acid to the A side. A side में amino acid की growing chain बनती जाती है. ओके, ये आई थिंक ये मैंने थोड़ा मिक्स करके बोल दिया है. अगेन आई से ओके, जब tRNA आएगा इट विल कम एंड सिट इन द पी साइट एंड अमीनो एसिड को छोड़ देगा, अमीनो एसिड विल गो टू ए साइट, ऐसे यहाँ चला जाएगा, देन tRNA विल गो. नेक्स्ट tRNA will come and again come into the A site, अमीनो एसिड को छोड़ेगा, अमीनो एसिड यहाँ A site में आके बाइंड हो जाएगा, then tRNA will go. Third tRNA will come and bind to the P site, again it will give amino acid to the A site and it will leave. Finally जब stop codon आ जाता है, it will go to the termination sequence और यहाँ से बाहर निकल जाता है. Okay, A मतलब P से A जाता है, then it will come to an exit. So this is the difference between the prokaryotic translation and eukaryotic translation. Definitions देख लेते हैं. The translation, transcription ये prokaryote में continuous है, मगर eukaryote में ऐसा नहीं है. Prokaryote में translation cytoplasm में होता है, eukaryotes में translation cytoplasm में ही होता है. प्रोकैरियोट्स में ये जो कैपिंग, आरएनए प्रोसेसिंग ये सब नहीं होता, बट यूकैरियोट्स में होता है. प्रोकैरियोट्स में 70S सब यूनिट होता है, यूकैरियोट में 80S सब यूनिट होता है. अनस्टेबल होता है प्रोकैरियोट में जो कि एमआरएनए बन रहा है, बट यूकैरियोट में इट विल बी लाइक अ स्टेबल गुड एमआरएनए. 70S जो मैंने राइबोसोम का सब यूनिट बताया था, दैट इज 30S प्लस 50S इन द प्रोकैरियोट. इन यूकैरियोट इट इज 40S प्लस 60S. Lifespan of mRNA in prokaryote is like 2 minutes, but for eukaryotes it will be like for days also. Okay, occurrence जरूरी नहीं है कि the mRNA and the proteins will be made at a particular time, but eukaryotes में G1 G2 phase में ये definitely होता है.
प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में बहुत फास्ट होता है, यूकैरियोट में इट इज स्लो, दैट इज व्हाई इट टेक्स डेज। रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, ये कहाँ आता है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पॉलीपेप्टाइड बन गया। ओके, पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से रिलीज करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, रिलीज फैक्टर्स 1 एंड रिलीज फैक्टर 2। ये आके जब ई साइट में बाइंड हो जाते हैं, रिलीज फैक्टर 1, 2, 3 भी होता है, रिलीज फैक्टर 3। ओके, इसमें रिलीज फैक्टर 1 एपीई साइट के साथ, मतलब 1, 2, 3 एपीई साइट में बाइंड हो जाते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड विल बी रिलीज्ड। ओके, एंड मतलब यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर होता है। सो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इनिशिएशन फैक्टर्स 3 होते हैं एंड इनिशिएशन फैक्टर्स इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन 9। मतलब इतना डिटेल में जरूरी नहीं है, बट आप बस जान लीजिए। सो इन डिटेल में अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, जो कि कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन अलग होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड है, वहां एमआरएनए प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होता, बट यूकैरियोट में क्योंकि अलग अलग होता है, इंट्रॉन्स रिमूवल, 5' कैपिंग, पॉलीएटेल, ये सब कुछ होता है। एमआरएनए इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन पॉली होता है, बहुत सारे पॉलीसिस्ट्रॉन, मतलब एक प्रोमोटर के अंदर बहुत सारे जीन्स आ जाते हैं, उनका पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसलेशन हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता एमआरएनए विच इज इन यूकैरियोट, इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। सो एमआरएनए विद इंफॉर्मेशन for only one protein or one peptide will be under one control, मतलब एक प्रोमोटर रीजन के अंदर एक ही जीन की इंफॉर्मेशन होती है और उसी के प्रोटीन्स बनते हैं। बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक में एक प्रोमोटर के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, 1S 50S, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट 30S, but in eukaryotes 80S is the total, 60S is larger subunit, 40S is the smaller subunit. Okay, राइबोसोम के स्मॉल यूनिट जो कि 30S में है, वहां एक शाइन डायगोनल सीक्वेंस होता है, दैट इज द स्टार्ट साइट। जैसे कि मैंने प्रोमोटर बताया था, ऐसा एक्सक्यूज मी, ओके, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था द स्टार्ट साइट इज यूर प्रमोटर रीजन, वैसे ही ट्रांसलेशन के लिए भी तो एक स्टार्ट साइट चाहिए ना, दैट इज योर शाइन डायगोनल सीक्वेंस। शाइन डायगोनल सीक्वेंस जो कि 30S सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, वहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है। मगर इन यूकैरियोट्स द 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है 43S, जो कि will go and bind to the methylated। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 5' में मिथाइलेटेड गुआनाइन बाइंड होता है, 3' में पॉलीएटेल होता है एंड ऑल। ओके, सो दिस मिथाइलेटेड गुआनाइन विल एक्ट लाइक अ मतलब शुरुआत। ओके, कोजैक सीक्वेंस करके बोलते हैं हम उसे, शुरुआत बनता है फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, सो इनिशिएटर टीआरएनए इज फॉर्माइल मिथियोनाइन, मतलब एफ-मेट, यहां से शुरुआत होती है। इनिशिएटर टीआरएनए इज मेथियोनिल टीआरएनए, सिर्फ मेथियोनिन होता है, सिर्फ मेथियोनिन इज द स्टार्टिंग कोडॉन फॉर यूकैरियोट्स, बट फॉर प्रोकैरियोट्स एफ-मेट इज द स्टार्ट कोडॉन। इनिशिएशन के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं इन प्रोकैरियोट्स। दिस इज, आई होप यू गाइस रिमेंबर, दिस इज प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज यूकैरियोट्स, राइट। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1, IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2, IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3। IF1 क्या करता है, ये जो कि 30S सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है एंड इट विल प्रिवेंट द प्रीमेच्योर एंट्री ऑफ द टीआरएनए टू ए साइट। ए साइट को ब्लॉक करके रखता है, क्योंकि हमेशा पी साइट में ही शुरुआत होती है, ए साइट को तब तक ब्लॉक करके रखता है। IF2 क्या करता है, ये एक GTP एस के साथ काम कर सकता है। जब when it is active GTP will be bound, when it is inactive GDP will be bound। तो ये क्या करता है, एफ-मेट टीआरएनए है ना, उसको आके 30S सब यूनिट के पास छोड़ के चला जाता है।
नेक्स्ट इज IF3. IF3 क्या करता है? इट बाइंड्स टू द 30th सब यूनिट एंड प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर बाइंडिंग. मतलब प्रीमेच्योर बाइंडिंग मतलब क्या होता है? सी, दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट, इसके साथ mRNA आके बाइंड होगा, देन ओनली योर लार्जर सब यूनिट हैज टू कम एंड बाइंड. mRNA नहीं है, there is a possibility that the larger subunit and smaller subunit can still bind. उसको prevent करने के लिए IF3 will be helping. Okay? And eukaryotic में इतने सारे initiation factors है. Can you see these are the initiation factors? हर एक की function जानने की जरूरत नहीं है because they will ask question from the prokaryotic part only. Okay, now elongation के लिए भी बहुत सारे factors हैं. In this is prokaryote, this is eukaryote. Okay, elongation में 4 factors present है. EFTU क्या करता है? This will bring the amino acyl tRNA, मतलब चार्ज tRNA जिसके पास अमीनो एसिड है वो A साइड के पास लेके आता है. It will just bring towards the A side. Okay, next EFTS ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है EFTU को. EFTS will activate the EFTU. ओके, EFG क्या करता है? ट्रांसलोकेशन फ्रॉम A साइड P साइड की जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, उसकी ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. एंड EFP इज हेल्पफुल इन द पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस. ओके, सिमिलरली एलोंगेशन फैक्टर्स अल्फा बीटा इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, जो कि अमीनो एसिड tRNA को लेके आएगा. बीटा गामा अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगा. एलोंगेशन फैक्टर 2 ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व है. elongation factor 5A, this is involved in peptide bond synthesis. Okay, you have to remember this guys. ये जो elongation factors और उनके functions है ये definitely याद रखना ही पड़ेगा. I know it's difficult but करना ही पड़ेगा क्योंकि questions में आते हैं. टर्मिनेशन में 3 रिलीज फैक्टर्स होते हैं. रिलीज फैक्टर 1 क्या करता है? स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है. RF2 क्या करता है? स्टॉप कोडॉन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है. ओके, RF3 क्या करेगा? ये जो राइबोसोम है ना उसको डिसोसिएट कर देगा. ओके, सिमिलरली इन यूकैरियोट्स RF1 ही होता है, ओनली 1 रिलीज फैक्टर, जो कि सारे ऑल द 3 स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करके स्टॉप कर सकता है. नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? आपका प्रोटीन बन गया. नाउ देयर हैज टू बी सम मॉडिफिकेशन डन इन द प्रोटीन इन ऑर्डर टू मेक इट फंक्शनली एक्टिव. First and foremost important modification is that especially in the prokaryotic protein, this is prokaryotic protein, this is eukaryotic protein, is that first मैंने आपको बताया था prokaryotes में the first amino acid is F-met, formyl methionine, इसको रिमूव करके बाहर निकाल देना. ओके, दैट इज तभी प्रोटीन एक्टिव बनेगा. ओके, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आपका गोल्गी में होता है. ओके, यहाँ से शुरुआत होता है, गोल्गी में होता है इन द यूकैरियोट्स. हियर mRNA का हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट बट हियर इट इज क्वाइट स्टेबल एंड लार्ज. ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है इन द प्रोकैरियोट एंड द प्रोसेस इज वेरी स्लो इन द यूकैरियोट. ओके, नाउ दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन. मैंने आज आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कंप्लीट कर दिया है. एक साथ पढ़िएगा जब आप इसको पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज अ फ्लो प्रोसेस, इसको फ्लो के साथ ही पढ़ लीजिएगा. ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. डू योर होमवर्क क्वेश्चन वेल. ओके, I hope you guys would have enjoyed the class today. Like, share and subscribe to our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का. अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you so much guys and have a nice day.